Okay. So, so the most सर फुल important, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। sorry, सर जो ट्रेनिंग मेथोलॉजी आप दिखा रहे हो वो सर फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। uh, अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा। सर नहीं सर शो हो रहा स्मॉल है। शो हो सर रहा है, वो क्या समझ में हो नहीं आ रहा रहा है? उतना। सर उनका पर्सनल नेटवर्क हो इशू रहा हो है सकता है, थोड़ा सा। लेकिन शो हो रहा है सर सबको। हो रहा है ना अभी, ये मैं हम्म। उस पे कर रहा हूँ। हो यस रहा है। सर। अभी एक्चुअली मैंने अभी वो ये उसमें आगे जो टेक्स्ट है वो उस पे नहीं आया था। आई थिंक अभी नहीं क्लियर है सर ये आ गया। द मोस्ट यस सर इम्पोर्टेंट यस सर। स्टेप। यस सर। So, first of all, the most important step in developing the annual training plan is to establish the competitive schedule for the athlete and to determine which competition require peak form. जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अभी आपके सामने कैलेंडर आ गया, आपने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी होगी एथलीट के साथ। सो फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड विच कंपटीशन अकॉर्डिंग टू योर एथलीट्स age, according to your athlete's level of performance, which is the main competition for your athlete, where your athlete will peak. If we say our elite athlete, those are in Indian team, for them it may be Asian Games, it can be uh, Commonwealth Games, and maybe a competition before that where the team final team will be selected, that can be also be major competition. So ये अगर हम एलीट एथलीट की बात करें तो उनके लिए यही मेन कंपटीशन है जहां पर उन्होंने पीक करना है। नॉट बिफोर दैट, देयर आर मेनी competition, but they have to peak. This is the main thing we need to understand. Okay, so the competition schedule is established by our sports governing bodies, our वर्ल्ड एथलेटिक, फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक या जो एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम्स जो कमेटी है वो डिसाइड कर देती है डेट। अकॉर्डिंगली आवर फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन, दे डिसाइड द competition calendar which you have been you have just seen and you already have the copies. And these and according to these competition, we the coaches, I am also coach, we design our training program, training plan. हम ट्रेनिंग प्लान को डिजाइन करते हैं ताकि किस कंपटीशन में हमने पीक फॉर्म हमारे एथलीट ने देना है। So these competitions require the athlete to be at peak performance and often provide the guidelines for organizing the athlete's annual training plan. So हमारा जो एज ए कोच मैं भी प्लान बना रहा हूँ, आप भी बना रहे हो, और हमेशा यही होता है कि हम कंपटीशन के हिसाब से कंपटीशन डेट्स एंड अवेलेबल टाइम, हमारे पास कितने महीने कितने डेज हैं, उसके हिसाब से वी प्लान द प्रोग्राम. सो but now you have more than 40 competition, nearly 40 competition. Out of this 40 competition, we need to understand the classification of competition. हमें कंपटीशन की क्लासिफिकेशन समझनी चाहिए। कंपटीशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। वी कैन क्लासिफाई द कंपटीशन टू ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर वन इज मेजर और ऑफिशियल कंपटीशन, नंबर टू इज प्रेपरेटरी कंपटीशन। आज का जो हमारा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को समझने का, वो ये चीज़ को समझना जरूरी है। और आप कोचेस ने ये चीज़ को आगे एथलीट्स को भी क्लियर करना है, क्लैरिटी देना है। So major competitions, it depends upon the athlete. If it is our elite athletes who are preparing for the Commonwealth Games or Asian Game, that is their major main competition, official competition. If your athlete is still at a development level and targeting some medal at national level in interstate or in Federation Cup, or it depends upon your target, then that will be the athlete's main competition. Then there are preparatory competition. This is there's no, I think, confusion or I think point about the main major competitions. Everybody know. But today we need to understand the role of preparatory competition and training methodologies. So preparatory competition are used, इनकी ये किस लिए रखे जाते हैं? Why we keep these preparatory competitions? Okay, so preparatory competitions are very important part of athletes development for high performance. Preparatory competition are used to test the athlete and attain feedback regarding specific aspects of training.
सो हमारा जो प्रेपरेटरी कंपटीशन होता है, जैसे अभी इंडियन सीरीज या कोई थ्रोज कप या कोई जंप्स कंपटीशन, ये जो आप पहले कंपटीशन देख रहे हो, ये कंपटीशन को हम प्रेपरेटरी कैटेगरी में करते हैं। एंड दीज कंपटीशन आर इंटेग्रल टू the preparation of the athlete and are an important part of training plan. Often athletes will train through these type of competition without using any specific tapering strategy. ये जो कंपटीशन होते हैं, इसमें टेपरिंग स्ट्रेटजीज नहीं यूज की जाती। टेपरिंग स्ट्रेटजीज कब यूज की जाती है? व्हेन यू वांट अ गुड पीक परफॉर्मेंस, यू वांट टू ब्रिंग द परफॉर्मेंस लेवल एट द मैक्सिमम, वो टेपरिंग स्ट्रेटजी नहीं यूज की जाती। यहीं पर मेन मिस्टेक होती है, जहां पर भी देखा गया एथलीट भी अपने आप को उस कंपटीशन में भी सम सोशल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है समटाइम कि मैंने जीतना ही है, मैंने। बट ये प्रेपरेटरी कॉम्पिटिशन्स की मेन स्ट्रेटजी नहीं होती। कोचेस यूज दिस कंपटीशन टू टेस्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एथलीट्स डेवलपमेंट। हम उस वे से कह रहे हैं जो एक वर्ल्ड वाइड आज काफी समय से जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट है, कोचेस वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। तो यूज दिस कॉम्पिटिशन्स एट ए टू टेस्ट एथलीट्स डेवलपमेंट। आपका एथलीट कोई भी इवेंट का हो सकता है। योर एथलीट कैन बी फ्रॉम स्प्रिंट्स, जंप्स, थ्रोज और मिडल लॉन्ग डिस्टेंस और स्टीपल चेज। यू वांट टू टेस्ट सम एस्पेक्ट, दोस कैन नॉट बी टेस्टेड इन द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग के आप जानते हो, ट्रेनिंग में अलग बात होती है, कंपटीशन अलग चीज होती है। तो वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ टेक्निकल भी हो सकता है, कुछ फिजिकल भी हो सकता है। आप उस कंडीशन में टेस्ट करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है कंपटीशन। बट यू नीड नॉट टेपरिंग, उसके लिए पीक लाने की जरूरत नहीं, जस्ट 1-2 days डीलोडिंग इज सफिशिएंट। सो फॉर एग्जाम्पल ये at a preparatory competition, javelin throw may compete at very near maximum capacity to test a technical change he or she has made in training. For example, approach run. ये जस्ट एक एग्जांपल है कि एक जेवलिन थ्रोअर आपके पास, उसको आपने कुछ अप्रोच रन में चेंजेस किए हैं, ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा है, लेकिन कंपटीशन सिचुएशन में जाके वो कैसे करता है। आप में जो जंप्स कोचेस हैं, थ्रोज कोचेस हैं या स्प्रिंट कोचेस हैं, कोई भी, उनको पता है बहुत से ऐसे एथलीट होंगे कंपटीशन ट्रेनिंग में बहुत सही होता है, लेकिन कंपटीशन में जाके, क्योंकि परफॉर्मेंस तो कंपटीशन की ही आप रिकॉग्नाइज होगी और उसमें कोई कमी है, तो ये जो प्रेपरेटरी कंपटीशन इसीलिए रखे जाते हैं ताकि कोचेस एथलीट को उस चीज में मेंटली भी फिजिकली भी हर एक तरह से प्रिपेयर कर सकें। यूरोप में कंपटीशन इतने अवेलेबल हैं कि बिकॉज इन यूरोप द distance between countries geographically is very short. Even from one country, you can go in the morning, compete there, and you can come back by the evening. But we don't have that advantage here in India. हमारे पास ये एडवांटेज नहीं है कि हम सुबह जाएं इंडिया से बाहर यहीं बाय रोड और कंपटीशन करके शाम या अगले दिन वापस आ जाएं। आप समझ तो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन, हमारे नेबरिंग कंट्री और जो सिचुएशन ऐसी नहीं है। उनके पास अगर देखोगे कंपटीशन कैलेंडर में, उनके पास जब सीजन शुरू होता है, दे हैव every week they have 3, 4, 5 or even more competition every week available in different parts. So what now AFI has created that reduce that gap and increase the number of competition. But now the coaches and especially the athlete has to make their mind how to compete in the preparatory, how to prepare for the main competition. So victory is not always the focus of these type of competition, rather they are taken as a very high intensity training session. उनको एक high intensity training session की तरह लेने की जरूरत है, ना कि उनको जीतने के लिए। So first of all, we have to see how the elite athletes are, or the athletes from Western countries, Europe, America, they are competing. So if we see elite athletes start competing in the month of February, March. अगर हम elite athletes को भी देखें तो February, March में वो कंपटीशन शुरू कर देते हैं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी सितंबर में हुई है। And the athletes who became world champion, they started competing in the month of February, March. Similarly, in 2024 also, Olympic year. So
So, and one more thing, many elite athletes continue their season even after peaking in a major competition. एक सेकंड चीज भी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी कि जब वो मेन कंपटीशन निकल जाता है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हुई, हम लोग हमारे एथलीट उसको वहीं क्लोज करके वहीं से आके एयरपोर्ट से सीधे घर को गांव को चले जाते हैं। मैं एलीट एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, जिस दिन कोई भी मेन, अगर एशियन गेम जिस दिन खत्म होगी उसी दिन चले जाएंगे। बट यू सी देम, दे ट्राई टू compete। आप ये सोचना क्यों करते हैं कि मेन कंपटीशन के बाद भी एक महीने तक वो अदर कंपटीशन में भी compete करते हैं। बट दिस इज बहुत डाटा फॉर द एलीट एथलीट्स। सो जस्ट all the information is available on World Athletics वेबसाइट। आप वहाँ से इसको इंफॉर्मेशन को बड़े आराम से देख सकते हो। दिस इज द competition participation of Sydney McLaughlin Leverone, who is 400-meter world record holder। उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक्स 2024 में किया था 50.37। आप सब जानते हो। लेट्स सी हर कंपटीशन शेड्यूल इन द month of in the year of 2024। So you see, she started competing in the month of April in 4x400 मीटर। ऐसा नहीं है कि उसी इवेंट में करते हैं, बट दे स्टार्ट कंपीटिंग। उनका कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी प्लान होता है। देन इन मई she competed in 200-meter also, 100-meter hurdle also। On 31st May, she competed in 400-meter hurdles। Then you see in the June, also competing. In the August, it was Olympics. First, 4th August, it was heat, then semi-final. In the final, she got gold with a world record, 50.37। Then she ran in the 4x400 meter, also getting gold medal। But main thing you see, she also competed on even 1 month after creating world record in the Olympics on 13th September। जो ये चीज स्पेशल देखने वाली बात है कि ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप एज ए कोच कि क्यों वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, ओलंपिक्स में गोल्ड 2 ले लिया, अब तो सेलिब्रेशन का टाइम है अगर हम अपने सिस्टम से सोचें। बट दे आर कंपीटिंग, और ऐसा भी नहीं कि परफॉर्मेंस पुअर है। शी इज कंपीटिंग इन 400 मीटर 49.11 सेकेंड। सो शी इज कंपीटिंग। अभी अगर हम नेक्स्ट उसका देखें, ये 2025 का, ओके, दिस ईयर शी रैन 400 meter। She prepared specially for 400 meter, and she ran the second best, all-time second best, 47.78। 47.6 is world record। आज तक इतना क्लोज दूसरा यही लड़की दौड़ी, और वो पहली बार उसने 400 मीटर की प्रेपरेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगेन शी स्टार्ट्स competing in the April, May, June, July, August। This you can see all the athletes, even the events in which you are working, you can check on the profiles of athlete on the World Athletics। ये मैंने भी वहीं से लिया है। आप वर्ल्ड एथलेटिक्स पे जाओ, वहाँ पर प्रोफाइल क्लिक करो, एथलीट की आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, हर एक एथलीट की इंडिविजुअल की। सो यू सी इन द September, she ran the second best performance ever in 400 meter women in September World Championship। Then दिस इज फेमके बोल, इसको आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये भी 400 मीटर हर्डलर है। एंड शी रैन वेरी गुड मिक्स रिले रेस फाइनल लेग इन पेरिस ओलंपिक्स। her personal best is 50.95, and she is world record holder in 400 meter indoor track। ये उसने ओलंपिक ईयर में ही किया। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि इंडोर भी कर रहे हैं, तो दे स्टार्ट इन द February। दिस इज ओलंपिक ईयर। February में compete कर रही है, और मार्च 2 मार्च को वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करती है 400 मीटर का। सो वी कैन से डबल पीरियडाइजेशन। एंड कंटिन्यू competing मार्च, अप्रैल, मई, जून,
In the June, she ran races. June, then July, and in August, it was Olympics, where she got so in the final, she was third. She got gold medal in mixed relay, and she also competed after the Olympics on 22nd August, on 25th August, and in on 14th September. ये एक पॉइंट है सोचने वाला कि वो वर्ल्ड दोनों का देखा आपने कि वो लोग मेन कंपटीशन में पीक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करने के बाद, मेडल लेने के बाद भी वो बाद में 1 महीना बाद भी कंपटीशन में compete करते हैं. सो प्लानिंग फॉर प्रेपरेटरी कंपटीशन. तो आज का जो हमारा मेन पॉइंट है दैट इज अबाउट द प्रेपरेटरी कंपटीशन. दिस वाज द डाटा फ्रॉम जस्ट 2 एथलीट्स. You can yourself search on the website, and especially for the competition there are a lot of literature is available regarding this. You can study also. Our point of this workshop is to give you the idea about the preparatory competition. So preparatory competition का अभी तक जो हमने देखा है, so उसके बारे में planning for a preparatory competition. How we can plan, make a good planning of preparatory competition so that it can benefit our athletes. So the training plan should include secondary or preparatory competitions as hard training session and to test the athlete's ability. So ये एक हार्ड ट्रेनिंग सेशन की तरह होते हैं और एथलीट के डिफरेंट एस्पेक्ट को आप टेस्ट करते हो. So the coach and athlete should think of the competitive schedule as a build up to the major competition. So ये जो competition है वो build up है एक तरह major competition तक. Because these contests are used as a training days, specific preparing strategies usually are not used. So यहाँ पर जो बार बार ये चीज आ रही है, जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि एथलीट कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी डीलोडिंग 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले शुरू कर देता है. Actually whenever you use, we will discuss in the next slide about this कि टेपरिंग में एक्चुअल होता क्या है. However, the schedule must allow time between the preparatory competition and major competition. लेकिन ये है कि आप preparatory competition कर रहे हो, फिर आपका major competition है, उसमें एक proper space gap होना जरूरी है. So what is tapering? The goal of taper is to optimize the athlete's performance at a specific time. टेपरिंग जो होता है उसमें एथलीट की परफॉर्मेंस मेन कंपटीशन पर एक पीक परफॉर्मेंस लाने के लिए की जाती है. सो when attempting to peak an athlete for competition, the coach reduces the workload prior to the competition. तो आप सभी ने एज एथलीट एज ए कोच भी आप कर रहे होंगे, ये आपको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है कि मेन कंपटीशन से पहले जो लोड होता है उसको रिड्यूस किया जाता है ग्रेजुअली. दैट इज नोन एज टेपरिंग. टेपरिंग जब किया जाता है तो नेचुरली पीक परफॉर्मेंस उसमें आती है. सो द रिडक्शन इन वर्कलोड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इज कंसिडर्ड ए टेपरिंग. Traditionally, a taper is simply defined as a reduction in training workload prior to a competition. So हम जो ट्रेनिंग लोड कम करते हैं, यही मिस्टेक कई एथलीट में भी ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि हमारा वही माइंड सेट है कि हमने हर एक कॉम्पिटिशन में, अभी आपने में भी देखा है जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, किसी किसी कॉम्पिटिशन में कोई और रेस दौड़ रहे हैं उसमें सेकंड थर्ड भी आ रहे हैं, और ये नॉर्मल से कंपटीशन है प्रेपरेटरी. सो एक माइंडसेट भी बनाना होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सेकंड या थर्ड आते हो, विनिंग इज ऑलवेज नॉट द प्रायोरिटी. ये हम समझते हैं, मैं भी एथलीट्स के साथ डील करता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है एथलीट को मनाना. उसको मनाना मीन उसको कन्विंस करना कि प्रेपरेटरी कंपटीशन करोगे और तुम्हें कोई भी बीट कर सकता है. कोई हमारा अभी भी थोड़ा सा जो एक सोशल कह लो, स्पोर्ट्स में एक सोशल एक बना हुआ, उसमें ये है कि यू हैव टू विन, और या पार्टिसिपेट ना करो, जाओ तो जीतो जरूर, तो वो चीज़ होती है. लेकिन अल्टीमेटली तो मेन कंपटीशन काउंट करता है. तो ये एक थोड़ा कंसेंसस बनना भी ज़रूरी है. और ये थ्योरेटिकली हम बता रहे हैं, बट प्रैक्टिकली मैं भी जानता हूँ इसमें काफ़ी मुश्किलें कोच को आएंगी इसको करने में, बट इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट.
सो दिस इज जस्ट मैं शॉर्टली ये एक टेपरिंग का डिफरेंट पैरामीटर्स शो किए गए हैं. सो बट दिस यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, दिस इज टेपरिंग, रिड्यूस इन द लोड. सो जब आप रिड्यूस करते हो लोड, उसमें क्या होता है, आप फिटनेस लेवल तो आपकी काफी, जब आप टेपरिंग स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट टेपरिंग, योर फिटनेस लेवल इज एट हाईएस्ट लेवल, बट फटीग इज ऑल्सो हाई लोड के कारण. So what happens, the when you start reducing the load, the fatigue reduces at a faster rate. जो fatigue होती है वो टायर्डनेस और स्टिफनेस वो बड़ी फास्ट जाती है. जो फिटनेस लेवल है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो मेंटेन ही रहता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिटनेस लेवल भी डाउन जाता है. तभी टेपरिंग, अगर हर बार एथलीट टेपरिंग करेगा तो फैटीग तो रिमूव होगी, लेकिन साथ में जो फिटनेस डेवलप की है वो बेस जो है वो थोड़ा डाउन जाएगा. सो आप टेपरिंग बार बार नहीं कर सकते. टेपरिंग कैन बी डन ओनली फॉर द मेन कंपटीशन वेयर यू वांट टू पीक योर एथलीट. So, points you need to avoid. Many coaches make two very large mistakes when planning the competitive schedule for their athletes and the preparatory for the preparatory competition. The first mistake is to have the athlete participate in every available competition. This interrupts the athlete's training and ability to develop the physiological, technical, and tactical skills required for major competition. सो ऐसा भी नहीं कि कंपटीशन इतने हैं, अभी मान लो हर एक कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करना. यू हैव टू सिलेक्ट द कंपटीशन रिक्वायर्ड एंड प्लान योर ट्रेनिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंगली. आप अपने कंपटीशन को सिलेक्ट कीजिए. पास्ट में कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं हमारे, कुछ एथलीट्स खास जो अच्छे इंडियन उसमें थे, मैं बाय नेम तो नहीं कहूँगा, आप एक्सपीरियंस है कि दे गॉट ए चांस टू compete इन यूरोप. कंपटीशन यूरोप में मिला, गवर्नमेंट से या स्पॉन्सर से पैसा भी मिला जाने के लिए, चले भी गए, लेकिन वहां पर जाके इतने कंपटीशन कर लिए कि वो 3-4 वीक्स में इतने कंपटीशन किए दैट द परफॉर्मेंस केम डाउन. तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे कंपटीशन करोगे हर हफ्ते या एक महीने में 4-4 5-5 करोगे तो परफॉर्मेंस है कि, ऐसा नहीं होगा. दैट इज वेयर द रोल ऑफ कोच इज इम्पोर्टेंट. Coach has to plan accordingly the number of competition, but competition is important. You keep your athlete in the competition accordingly. क्योंकि और भी फैक्टर होते हैं. How long your athlete will be traveling, आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, उसमें टाइम कितना खराब हो रहा है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. सो ये चीजों को भी ख्याल रखना है. बट द सेकंड मेजर मिस्टेक, इसको बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो एथलीट पीक कर गए अप्रैल में, जल्दी कर गए, बाद में वो परफॉर्मेंस नहीं है. तो उसका मेन कारण था यूजिंग टेपरिंग स्ट्रेटेजीज. टेपरिंग नहीं, प्रेपरेटरी पीरियड यू कैन रिड्यूस स्लाइटली लोड, जस्ट वो इसलिए कि कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि आप बिल्कुल हैवी लोड से सीधे कंपटीशन नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर मैनी रीजन. बॉडी स्टिफ होगी, उसमें फुल एफर्ट से करे तो इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू स्लाइटली रिड्यूस द लोड, नॉट फॉर टेपरिंग, जस्ट टू prepare your athlete for the competition. So this is one example of the competition calendar. So peaking, I think just give me a minute. I think one slide कुछ आगे पीछे हो गया. Okay, we will continue with this. So you can see this is just a general plan, training plan and competition plan. So you can see this is the preparedness. Preparedness means the body form, जिसको हम कहते हैं performance level. So पहले जो preparatory period होता है उसमें हमें पता है performance हम उतनी ऊपर नहीं लाते, जो एक नेचुरल जो ट्रेनिंग से ऑटोमेटिकली आ रही है वो आ रही है. बट यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट परफॉर्मेंस कैपेसिटीज, लाइक यू आर वर्किंग ऑन एंड्योरेंस और मे बी स्ट्रेंथ और सम अदर फिजिकल क्वालिटी. तो यहाँ पर पीकिंग ये दिखाया, ये कंपटीशन एक मे बी नेशनल कंपटीशन पीकिंग, फिर सेकंड, फिर थर्ड में, लास्ट में मेन कंपटीशन पे पीकिंग है. सो it is recommended that the athlete attempt to peak by using specific tapering strategies.
फॉर ओनली वेरी फ्यू कंपटीशन, जो हम कह रहे हैं नॉर्मली 2 कंपटीशन पे पीक या मैक्सिमम 3 पे करना एक ऑप्टिमम एक प्लान रहता है. सो व्हेन यू आर प्लानिंग प्रेपरेटरी पीरियड, जब आप प्रेपरेटरी पीरियड प्लान कर रहे हो, सो when constructing the training plan for the competitive phase, the coach must consider the sequence of or and frequency of competition, जो अभी हमने डिस्कस किया कि कितने कंपटीशन और एक कंपटीशन के दूसरे में कितना आप ट्रेनिंग के हिसाब से गैप, स्पेस, ड्यूरेशन रखना चाहते हो. द मोर फ्रीक्वेंट द एथलीट competes, द लेस टाइम यू विल हैव टू ट्रेन फॉर नेक्स्ट कंपटीशन. और जो अभी हमने कहा कि प्रिपेयर्डनेस, एक फिटनेस लेवल, वो भी डाउन होता है, जिसको बेस जिसको हम कहते हैं. देयरफॉर ओवरली फ्रीक्वेंट कंपटीशन कैन impede the athlete's development because each competition intake can result in fatigue which must be dealt with by reducing training loads. So regarding the interval between competitions, undertake competitions only when the athlete is capable of achieving set objectives for each training factor: physical, technical, tactical and psychological. सो आप जो भी कंपटीशन चूज करोगे प्रेपरेटरी, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि आप इस चीज को डेवलप करना चाहते हो, कुछ उसका फायदा हो, वो चाहे टेक्निकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो. सो एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन शुड इंक्रीज ग्रेजुअली. पहले कंपटीशन थोड़ा इजी, बट gradually when you are approaching close to the major main competition, the level of competitive preparatory period should increase. And always select challenging competition. Unchallenging competition do not motivate the athlete. वैसे ये जो लाइन है ये एप्लीकेबल है when ever any the athletes, even our athletes are competing, they get the chance to compete in the Europe. वहां पर बहुत से कंपटीशन होते हैं, वहां पर ये लेवल अलग अलग बहुत मिलते हैं. बहुत से ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें बहुत लो लेवल पे होता है कंपटीशन, कुछ मीडियम, कुछ काफी हाई लेवल होते हैं. हमारे यहाँ पर अभी कोई नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन हम कहते हैं कि काफ़ी हो गए हैं, बट एक AFI कर रही है, वहाँ पर तो कितनी कंट्रीज, अलग अलग क्लब्स, बहुत कंपटीशन होते हैं. तो यहाँ पर AFI का इतना बड़ा चैलेंज है, उसको फुलफिल कर रही है. तो यहाँ पर लेवल का डिफरेंस बहुत कम आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा लेवल. चैलेंज द एथलीट बाय प्लेसिंग अगेंस्ट अपोनेंट विद सुपीरियर क्वालिटी. सो अकॉर्डिंगली थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी एथलीट होने चाहिए. So the preparatory competition serves as a sequential progressive steps that bring the athletes physiological capacities. जो हमारे एथलीट को हम preparatory period के लिए we prepare. So there is a sequential means आप मार्च फरवरी शुरू कर रहे हो, एक सीक्वेंस में उसको आप इम्प्रूव करते हो, उनके स्किल्स को, साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज, टेक्निकल स्किल्स, tactical abilities and psychological states also, and thus performance to be very highest level in the major competition. Or just a minute, I have to share the screen again. कुछ थोड़ा issue है actual में. Just give me a minute. Okay, I'm sharing the screen again.
ओके, इज इट विजिबल? क्या आपको स्क्रीन? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, सो यस सर, अभी हम यस सर। जो देखिए, ऐसा है, जो अभी ये जो पॉइंट, अभी हम काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बट तुम एक चीज़ ख्याल रखिए, जो आज का वर्कशॉप का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इतने सारे कंपटीशन आपके सामने हैं। सो एज ए कोच आप उन कंपटीशन को कैसे मैक्सिमम बेटर यूज ले सकते हो अपने एथलीट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब एक तो आपने देखा कि जो कंपटीशन सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपलसरी है कि कम से कम 2, फिर आगे जाके 3 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और एएफआई के इट इंक्लूड स्टेट मीट्स आल्सो, आपके स्टेट मीट भी उसमें इंक्लूड होती है। अगर आप स्टेट की है तो उसको भी उसमें काउंट होगा। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं डिफरेंट एबिलिटीज की, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रेपरेटरी कंपटीशन इज साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज। आप जितने भी यहाँ पर कोचेस हो, आप सभी खुद भी एथलीट रहे होगे, ये आप एक मेजर चैलेंज देते हो। यू सी दिस इज ए मेजर चैलेंज। मोस्ट ऑफ द टाइम your athlete is able to give very good performance in the training but not in the competition। ये आपने बहुत कॉमनली देखा है कि एथलीट्स ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा, वो रिपीट नहीं हो रही कंपटीशन में। और उसका मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, द मेन रीजन इज अवर साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। एंड द प्रेपरेटरी कंपटीशन आर द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव द साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज। जो हमारे प्रेपरेटरी कंपटीशन है, ये आपके एथलीट को जो साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस है, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट है। इफ नाउ द पॉइंट इज कॉम्पिटिटिवनेस हैज टू बी ट्रेन। ये बातों से इतनी नहीं होती, प्रैक्टिकल चीज है। साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन आप करोगे, आप उसको मेंटली बूस्ट करोगे, यू मे गेट सम सपोर्ट फ्रॉम सम साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, आपके पास अगर हैं अवेलेबल साइकोलॉजिस्ट। बट इफ द थिंग्स आर नॉट प्रैक्टिकली डन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। सो दैट कैन बी इम्प्रूव ओनली थ्रू द कंपटीशन। सो कंपटीशन के थ्रू ही साइकोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो सकता है। प्रेपरेटरी कंपटीशन बेस्ट अवेलेबल हमारे पास टूल है। कॉम्पिटिटिवनेस इज नॉट समथिंग दैट कैन वी जस्ट टर्न ऑन द कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन पे चलो भी 4 लोग साथ में इकट्ठे कर लिए, जोश दिला दिया, उससे हो जाएगा। उससे कुछ खास बात नहीं बनती, आपने देखा होगा। आप इस बार ट्राई करो, अगर आपके कुछ एथलीट आपके होंगे जरूर जो ऐसी प्रॉब्लम है, ट्राई टू develop their competitiveness through these preparatory competition। The stress of the competition often makes athletes shut down। जो स्ट्रेस होता है ना कंपटीशन का, पहले ही शुरू हो जाता है, एक दिन पहले या कुछ दिन पहले। सो प्रेपरेटरी कंपटीशन ट्रेन द एथलीट साइकोलॉजिकली इन ए प्रोग्रेसिव वे। एक निचले लेवल से धीरे धीरे एथलीट को ऊपर लेके जाता है। दिस इज स्ट्रेस कर्व। आप जो ये बीच में डॉटेड लाइन देख रहे हो, दैट इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस कर्व increases as you approach towards the competition period। प्रेपरेटरी पीरियड में कोई स्ट्रेस, अभी प्रेपरेटरी चल रहा है, एथलीट्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है खास। नवंबर निकल गया, दिसंबर, जनवरी, बट स्ट्रेस विल ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर आप उनको मान लो आप प्रेपरेटरी कंपटीशन में नहीं करते, एक ही कंपटीशन में डायरेक्ट लेके जाते हो प्रिपेयर करके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। यू हैव टू ट्रेन देम, आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बार बार कंपटीशन में लेके जाओ। ये एक पार्ट है, बाकी और जो एस्पेक्ट्स है वो भी वहां पर टेस्ट होते हैं, बट वन थिंग इज साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, कैपेसिटी। सो यू नीड टू train your athlete to handle the stress। So the ability to manage the stress that accumulates as a result of training and competition is an important factor that underlies successful athletic performances। So training-induced stress can be considered a summation of both physiological and psychological stresses and can be elicited
by both internal and adverse external influences. So जो stress होता है that is summation of not only psychological and physiological load also. जो physical load है और जो psychological है उनका मिलके ये प्रेशर बनता है। और इसमें जो कंपटीशन में इंटरनल भी और कुछ एडवर्स एक्सटर्नल भी फैक्टर हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं। सो इसके द्वारा जो हमारे प्रेपरेटरी कंपटीशन है इससे आप बेटर और बेस्ट वे में आप ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को ट्रेन कर सकते हो। सो नाउ द लास्ट वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। सो व्हेन यू आर प्लानिंग ए कॉम्पिटिटिव सीजन, so you have the competition. There are two approaches for planning. Competitive phase means competitive, not competition period. It's a competitive phase for preparatory competition. One is the grouping approach. One is cyclic approach. सो जो ग्रुपिंग अप्रोच है ये मोस्टली इंडिविजुअल को, हमारे इंडिविजुअल इवेंट है उसमें ये ज़्यादा यूज होती है। सो द ग्रुपिंग अप्रोच इज ए मेथड ऑफ प्लानिंग 2 or 3 weeks in a row during which the athlete takes part in competition or participates in several competition or races per weekend, followed by several micro cycle 3 to 4 weeks that are dedicated to the training and allow the athlete to prepare for a 2-3 weeks of group competition. सो इसमें ये होता है कि जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन मई, इन द लास्ट 2 weeks ऑफ मई योर एथलीट इज हैविंग कॉम्पिटिशन। लेफ्ट में आप देखिए, ओके। सो माइनर एम्फेसिस क्योंकि ये प्रेपरेटरी कॉम्पिटिशन है। देन इन जून योर एथलीट इज फॉर 4 weeks यू आर ट्रेनिंग ओनली, preparing on some physical aspects, and then again in July you have for 3 weeks you may be having 2-3 competitions. So this is grouping approach. ये इंडिविजुअल इवेंट में हमारे ज़्यादा यही यूज़ होती है कि आप जैसे भी आपने कंपटीशन देके आ गए हैं, 2 weeks just go for competitions or one कुछ few days, then again coming for the training. Then in the August you have some major emphasis competition that is like our national meet. If you are trying to qualify, get selection for the Asian Game or Commonwealth, then in the last of September you can see it is a मेन कंपटीशन। सो ये एक ग्रुपिंग अप्रोच होती है जिसमें कुछ 2-3 कंपटीशन करके फिर 3-4 माइक्रो साइकिल्स वीक ट्रेनिंग, देन फिर कंपटीशन। तो ये एक अप्रोच है। सो दिस इज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल इवेंट्स। एंड देन इज साइक्लिक अप्रोच। साइक्लिक अप्रोच में यही होता है कि इन दिस अप्रोच द कोच में टेक द एथलीट टू सेवरल कंपटीशन दैट अकर एवरी 2 weeks। तो इसमें ये होता है कि आप एक कंपटीशन होगा, 2 हफ्ते ट्रेनिंग, फिर कंपटीशन, फिर 1 हफ्ता रेस्ट, ट्रेनिंग मत मीन रेस्ट फ्रॉम कंपटीशन। सो दिस इज साइक्लिक अप्रोच, बट दिस इज मोस्टली यूज्ड बाय टीम स्पोर्ट्स। उस टीम स्पोर्ट्स में ज्यादा यूज किया जाता है। सो इन द एंड जो मेन पॉइंट हो सकता है आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि नंबर ऑफ कंपटीशन आप सोच रहे होगे, अगर मैं थ्रोस का कोच हूँ, if I have a javelin thrower also, suppose I have shot putter, so the number of competition I will choose, it will not be same for both the events or even same for 2 athletes. जो event wise number of competition different करते हैं because of the structure of that competition and energy system you require to compete in that competition. अगर javelin thrower और शॉर्ट पुटर की बात करें तो या जैवलिन थ्रो को डिस्कस थ्रो से कंपेयर करें तो डिस्कस थ्रो ज्यादा कंपटीशन कर सकता है एज कंपेयर टू जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो उतने नहीं कर सकता बिकॉज इट पुट्स हाई स्ट्रेस ऑन द नर्वस सिस्टम। इम्प्लीमेंट इज लाइट और उसको रिकवरी थोड़ा ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा कंपटीशन नहीं कर सकता। सिमिलरली ये अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखिए एक बिगिनर और एक एलीट एथलीट के बारे में जैसे दिया हुआ है, आप दोनों को देख सकते हो। सो स्प्रिंटर्स में कंपटीशन काफ़ी हैं ऊपर के उसमें। सो फॉर इवन बिगिनर एथलीट्स इन दिस ऑफ सीजन विंटर सीजन 3 or 4 कंपटीशन, बट इन समर 12 to 16 कंपटीशन। लेकिन अगर आप नीचे वॉकिंग मैराथन पे चले जाओ तो वहां पर आप कर ही नहीं सकते प्रेपरेटरी उसमें। ओके, सो यू हैव टू सी
You have to search. There are a lot of articles available on online also. You can check 800, 1500 meters. This is just to give the overview. So in the end, we'll say, when we say this is periodization, it's a concept, it is not a model. So जो periodization है, ये एक concept है, ये एक model नहीं है जो बात करते हैं. You have to design your own model. So आज का जो हमारा the main objective of our today's discussion is regarding competition calendar. The main thing is how you will classify your competition into preparatory and main competition. And tapering strategies or peaking will be used only for the main competition, not for the preparatory competition. And you have to convince your athletes also. वो एक थोड़ी बड़ी टास्क है आपके लिए कि आपने एथलीट को इस चीज़ के लिए कन्विंस भी करना है, क्योंकि एक माइंड सेटअप इतने सालों से बना, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता. आपको टाइम लगता है इस चीज़ को करना. आप एज एथलीट, हम लोगों ने यही सिस्टम यूज़ किया है कि ट्रेनिंग करते रहे और एक मेन कंपटीशन पे आके टेपरिंग डीलोडिंग करके पीक परफॉर्मेंस दे दी. प्रेपरेटरी कंपटीशन कभी किए नहीं थे, हमारे टाइम में तो है ही नहीं थे. आप में से मोस्टली नहीं थे. अभी हम उस फेज में एंटर हो रहे हैं जहाँ दुनिया में, वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है. परफॉर्मेंसेस देखो कितनी चेंजेस आ रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं. डिस्पाइट एंटी डोपिंग सिस्टम इज गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रोंगर, लेकिन परफॉर्मेंस बिकॉज साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है. तो अ, ये एएफआई की तरफ से वर्कशॉप का मतलब यही था कि ताकि कंपटीशन कैलेंडर जो नज़र आए, इतने सारे कंपटीशन, उसका पर्पस समझ आए. तो एज ए कोच आप स्टार्ट कीजिए अपने, यू स्टार्ट मेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ योर कंपटीशन, डिजाइन योर प्रोग्राम, डिसाइड योर कंपटीशन अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, योर अवेलेबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड द लेवल ऑफ योर एथलीट. आपका एथलीट कौन से मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ पर आप पीक लाना चाहते हो, और किन कंपटीशन को आप प्रेपरेटरी यूज करना चाहते हो. और जो अभी लास्ट में हमने बात की थी कि यू हैव टू ट्रेन योर एथलीट साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज है, सबसे बड़ा परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस है. बहुत से एथलीट हमने देखे, वी हैव सीन मैनी एथलीट्स हैविंग वेरी गुड performance capacities level, but they are not performing in the competition. और बहुत से एथलीट ऐसे हैं, वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से बेटर हमेशा प्रोड्यूस करते हैं कंपटीशन में. लेकिन जो नहीं कर पा रहे उनको ट्रेन किया जा सकता है. एवरीथिंग इज ट्रेनेबल. सिर्फ इस बात पे, जैसे हम पहले करते थे कि भाई ये तो डरता है, डरपोक है, तो डरपोक है तो उसको ट्रेन कैसे किया जाएगा. हमारे पास एक ये टूल अवेलेबल है, यूज द प्रेपरेटरी कंपटीशन एंड अदर एस्पेक्ट्स आल्सो. आपको टेक्निकल चेंज लाना चाहिए तो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आपका एथलीट कैसे काम कर रहा है. और स्प्रिंट्स में तो स्पेशली स्प्रिंटिंग इवेंट, शॉर्ट स्प्रिंट्स में तो बिना कंपटीशन के परफॉर्मेंस ही नहीं आ सकती, क्योंकि जिस इंटेंसिटी पर एथलीट कंपटीशन में दौड़ता है वो ट्रेनिंग में पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम पॉसिबल होता है. So, and then it's all. Thank you. If you have any question, you can ask. You can unmute and you can ask the question. Sir, good afternoon, sir. Okay. हेलो. Yes, Umesh Lora. सर, मेरा एक सर मतलब वो क्वारी था सर. जैसे कि जो अपने नेशनल के जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो होते हैं सर, तो काफी समटाइम्स हाँ, कुछ इवेंट्स के तो क्वालिफाई स्टैंडर्ड अच्छे हैं सर, जिसे इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं. लेकिन कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे हैं सर जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड और रिजल्ट जो होता है नेशनल में सर, वो उमेश, बहुत बीच में लो आवाज है बंद सर. होगी. तो क्या कह उसमें रहे थे, कम से कुछ कम कुछ एक इवेंट बार ऐसे हैं. अगर उस पर कंसीडर करें सर तो वो ज्यादा बेटर होगा सर, नहीं, क्योंकि आवाज नहीं आ रही जब अभी. तक वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो मेजर कंपटीशन खेल नहीं पाते हैं सर. तो मेरा एक यही क्वारी था सर कि उमेश, अगर आवाज कम होगी, बहुत बहुत हल्की आ रही है. सिग्नल ठीक है मेरे ख्याल, चेक करना कुछ.
वीडियो ऑफ करके वीडियो को टर्न ऑफ करो, फिर बोलो, शायद सिग्नल वीक हो, ऑडियो आ जाए। हाँ हाँ सर, हाँ सर ये था मेरा क्वेरी सर कि जो हाँ अपना क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड और समटाइम सर कुछ इवेंट्स के जो है रिजल्ट जो है काफी सर क्लोज होते हैं सर। तो ये कहना चाह रहे थे कि सर कि प्रिपरेटरी फेज में क्योंकि क्वालिफाई करना भी हमारे लिए जरूरी होता है सर, तो उस पर थोड़ा कंसीडर किया जाए सर एएफआई के थ्रू या पूरे कोचिंग पैनल के थ्रू कि कुछ इवेंट्स के जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उस पर थोड़ा सा कंसीडर किया जाए सर। फॉर एग्जांपल कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 400 हडल्स की बात कर रहा हूँ सर, जैसे सीनियर लेवल पे जो जो सर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो रखा गया है सर, 1-2 का रखा गया फॉर वुमेन्स कैटेगरी सर, और मैक्सिमम मेडल जो है सर वो समथिंग 59 100 या 11 में भी मेडल्स आ जाते हैं सर। तो काफी क्लोज क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है सर, और इसके कारण सर नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट सर है वो क्वालिफाइंग में ही बाहर हो जा रहे हैं सर। आई थिंक इसके ऊपर शायद इससे रिलेटेड कुछ बात हुई थी, बट मैं नोट कर लिया है। आई विल सर डिस्कस सर दिस पॉइंट। थैंक यू। सर सर थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो Good afternoon, sir. यस, गुड आफ्टरनून। Uday Chaudhary from 2016 batch, sir. ओके, Sir, thank you for enlightening us. वेलकम। सर वन क्वेश्चन, अगर कुछ न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी के ऊपर भी सर अगर कुछ प्लानिंग हो सके कि ऑफ सीजन में न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी कैसे लेके चलनी है ड्यूरिंग कंपटीशन, और उसके ऊपर अगर फ्यूचर में क्लास या अभी कुछ आप enlighten कर सकें सर। So, your point is about scientific support or education on scientific support. यस So, सर, यस सर। I will note down this suggestion. We will discuss on this point. Because at the time of sir this preparatory phase and competition phase, our nutrition strategy is different, sir. We require Okay. more, different type of elements during our preparatory phase or during off season we can say. Okay, okay. So उसके ऊपर थोड़ा सा अगर क्लासेस वगैरह हो सके। चलो, मैं इस पॉइंट पर मतलब वही चीज आ गई, ये न्यूट्रिशन का भी हो सकता है, उससे रिलेटेड और भी चीजें हो सकती हैं। सो Yes, इस yes. पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, और इस पे अ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट। Thank you, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस विशाल मीणा सर, यस राजस्थान। यस विशाल। सर जैसे हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम जैसे हमारी 6 वीक सर्टिफिकेट भी चल रहा है और भी हमारी लेवल्स चल रहे हैं, तो सर हम एआई को लेके सर क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे सर किसी भी चीज को? एआई को लेके जैसे सर कुछ एप्स हैं, जैसे कोचेस आइज है, फोटो फिनिश है, इसके अलावा हमारे पास किनोविया है, डार्टफिश है। तो सर इसको भी तो सर हम सिखा सकते हैं ना बच्चों को, जैसे कोचेस को अगर इसका लेसन दिया जाए। हाँ, ये सिखाया जा सकता है, बट इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किनोविया किया, कहा, आई थिंक आई स्टार्टेड यूजिंग किनोविया, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद। आई स्टार्टेड यूजिंग इन 2009 आई थिंक। उसके बाद यस कई सर। वर्जन भी आ गए। उस टाइम पर कुछ ट्रायल एंड एरर से सीखा, कुछ ऐसे ही। लेकिन पॉइंट एक ठीक है रिगार्डिंग कनोविया नहीं, लेकिन मतलब कोई नॉट ओनली कनोविया। नहीं, उस पर्टिकुलर एक ऐप की बात नहीं कर रहा नहीं, सर मैं समझ गया। सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी इवेंट में स्पेसिफिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है, कौन से पैरामीटर को आप ये पॉइंट के ऊपर तुम्हारा ये जैसे सजेशन है उसको इस पर भी किया जा सकता है ये। लेकिन ये सारा कोचेज एजुकेशन सिस्टम में आ गया। खैर, ये भी पार्ट कोचेज एजुकेशन की है, ये जो आज हमने वर्कशॉप किया है। सो जो अभी बात उदय ने कही कि वो न्यूट्रिशन, तो मैंने वही पॉइंट कहा था कि जो साइंटिफिक